एग्रीनोवा। आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो पहले हम PYQ देखेंगे और उसके बाद कंसेप्ट देखेंगे ऑन द बेस्ड ऑफ PYQ। तो आइए चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन, जो कि 23 में पूछा है 20 मार्क्स के लिए। इसमें हमें स्पेसिफिक फीचर्स पूछे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के एंड नेचुरल फार्मिंग के। द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज अबाउट the preparation and the role of biodynamic and cow pat pit। ये कंसेप्ट हम अगली वाली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अभी सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग पर फोकस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इधर डेफिनेशन पूछी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की और सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन ऑर्गेनिक फार्मिंग के बताने हैं। 2019 का क्वेश्चन है, फिर से 2019 फॉरेस्ट्री एग्जाम का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, सेम क्वेश्चन asked in IFS and civil services. Okay, then again the role of farming, organic farming पूछा है। स्पेसिफिक फीचर, रोल, डेफिनेशन हो गई, ये 3 मेजर्स डायमेंशंस हो गए, उसके ऊपर पूछा है। तो इसके बाद फिर से व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग 2017 में और सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी में उसका फायदा। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इधर ज़्यादातर ऑर्गेनिक फार्मिंग, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, डिस्क्राइब organic farming, discuss organic farming. The first part of the question is mostly about what is organic farming, and the second question varies. Here in 2017 the question is sustaining, how does organic farming help in sustaining soil fertility and crop productivity. In 2014 the importance of organic farming with respect to nutritional value addition. Okay, then next, what is organic farming, the same question. And the second part, should a country like India go for organic farming, discuss the scope and limitations of the farming in India. स्कोप्स और लिमिटेशन बताने हैं। ओके, इधर ब्रीफ में मैंने दिया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या क्या देखना है। सोशल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल डायमेंशन, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑर्गेनिक फार्मिंग इन वैरिड एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स देखने हैं। बेनिफिट इन सॉइल फर्टिलिटी, क्रॉप प्रोडक्टिविटी, उसके स्कोप और लिमिटेशन। तो चलिए देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग। सो व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग? ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? इट इज़ अ फार्म डिज़ाइन मैनेजमेंट टू क्रिएट अ इकोसिस्टम। कीवर्ड्स पर ध्यान दीजिए। फार्म डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट टू क्रिएट इकोसिस्टम विच कैन बी सस्टेनेबल, विच कैन अचीव सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी, जिसमें आर्टिफिशियल एक्सटर्नल जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है, विदाउट आर्टिफिशियल एक्सटर्नल इनपुट्स। ठीक है, तो International Federation of Organic Agriculture Movements IFOM has given 4 major principles of organic farming. In exam we can draw the diamond shape and represent the 4 principles like this. So first principle is principle of health. So what principle of health talks about? The organic farming should sustain and enhance the health of soil, plant, animal, humans and planet as a one and indivisible, undivided. So organic farming should keep soil, plant, animal, humans and planet healthy. It's principle of health. जैसे कि ज़्यादातर फोकस रहता है सॉइल फर्टिलिटी, इट शुड मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी, फूड सेफ्टी for humans and animals consumption, and also the ecosystem health. Okay, then we go forward with the principle of ecology. So what principle of ecology talks about? It talks about the organic farming should be based on living ecological system and cycle, and work with them, emulate them and help to sustain them. So organic farming should work with natural systems and cycles like soil, plant, animal, environment, and should support each other. So it must focus on recycling of nutrients from the soil or the environment. It should maintain biodiversity rather than harming the biodiversity, and should maintain the natural balance. Then principle of fairness talks about organic farming should build a relationship that ensure fairness for farmers,
traders, workers, and consumers. Okay, so the organic farming should build on relationship that ensure fairness with regard to common environment and life opportunity for farmer, trader, worker, consumers. So it should maintain fair trade, animal welfare, social justice for farmer and consumers. The next principle is principle of care. Organic farming should be managed in precautionary and responsible manner to protect the health and well-being of the current and future generation. So it should be practiced in responsible and cautious way by avoiding the risk of genetically modified organisms, chemicals, unsustainable practices like high use of fertilizer, pesticide, herbicide, and other chemicals. Then let's go forward with the characteristics of organic farming. So जल्दी से देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक क्या है. तो बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग अवॉइड केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड एंड हर्बिसाइड्स एंड GMO, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. यूजेस नेचुरल इनपुट, हमें पता है, जैसे कि कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, बायो फर्टिलाइजर एंड नीम प्रोडक्ट्स एंड अदर बायो प्रोडक्ट्स. ओके, ये दो हो गए. केमिकल फर्टिलाइजर नहीं यूज़ करना, नेचुरल इनपुट यूज़ करना है. एंड एम्फेसिस ऑन फार्म रिसाइकलिंग, जैसे कि क्रॉप रिसाइड्यूज टर्न ओवर इनटू द सॉइल, इट एक्ट हैज मल्च एंड रिड्यूस evapotranspiration. एनिमल डंक रिसाइकलिंग होता है, न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल. ओके, फोकस ऑन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी थ्रू क्रॉप रोटेशन. क्रॉप रोटेशन एग्जांपल दे सकते हैं हम, सीरियल क्रॉप एंड देन पल्स क्रॉप और लेग्यूम क्रॉप, बिकॉज सीरियल क्रॉप exhaust the nutrient and pulse crop retains. Then next, it relies on biological pest and disease management, जैसे कि बायो पेस्टिसाइड जो बायोलॉजिकली प्रिपेयर होते हैं, नीम पेस्टिसाइड, फेरामोन ट्रैप्स एंड प्रेडिटर्स बायोलॉजिकल प्रेडिटर्स. आगे जाके हम एग्जांपल देखेंगे. द नेक्स्ट, promotes biodiversity conservation. Biodiversity conservation is the main aim and maintain ecological balance through various methods, जैसे कि मिक्स क्रॉपिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री एंड पॉलीकल्चर. एंड नेक्स्ट, इंश्योर सस्टेनेबिलिटी ऑफ सॉइल, वाटर, एनवायरनमेंट. यही सेम पॉइंट है, बैलेंस करना है और सस्टेनेबिलिटी लानी है. देन नेक्स्ट, एनकरेज इंटीग्रेशन ऑफ लाइफ स्टॉक, जैसे कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम और रिसोर्स साइकिलिंग, जिसकी हेल्प से हमें रिसोर्स साइकिलिंग करनी है. ट्रीट फार्म एज हॉलिस्टिक, मतलब फार्म है, हमें एक इंटीग्रेटेड चेम्बर की तरह यूज़ करना है फार्म को, पूरे फार्म को, जिससे रिसोर्स रिसाइकलिंग करनी है. देन नेक्स्ट, प्रमोट सोशल फेयरनेस, जैसे कि सेफ फूड फॉर कंजम्पशन, फेयर ट्रेड, फेयर प्राइस एंड फार्मर लाइवलीहुड सिक्योरिटी. सो रिसेंट न्यूज़ में कौन से केसेस है ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिलेटेड, मतलब जो केमिकल फार्मिंग वर्ल्ड वाइड चालू है, मोस्टली इंडिया, और वो एक्सपोर्ट करता है टू द वेस्टर्न कंट्रीज. वहाँ के क्या इश्यूज है? सो लेट्स सी द न्यूज़. कैंसर कॉजिंग केमिकल फाउंड 527 इंडियन फूड आइटम बाय EU, यूरोपियन यूनियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी. 527 chemical they found in our foods, majorly the spices. So let's see here. In concerning revelation, European Union flagged cancer causing chemical from the Indian products. Spices of Indian origin have already banned in Hong Kong, Singapore, because the ethylene oxide level suppress safety limit in the item tested and cause alarming effect. So 527 cancer causing chemicals they found in our Indian spices because ethylene oxide was too high, ethylene oxide above the safer limit. So it causes concern for the Indian exports and farmers, and therefore organic farming becomes important. The next,
forced to destroy. US rejected 15 mango shipment from India. Exporter estimate loss of this much dollar. Okay, we lost our GDP or the revenue, which impacted economy of the country. The next, Bengaluru's ethylene oxide, the cancer causing chemical, are found in export quality product from India, which may have been in news recently, but it is not only the contaminant that came under the scrutiny of European Union. मतलब इससे भी ज़्यादा केमिकल्स है वो जो यूरोपियन यूनियन ने फाइंड किए. Therefore they banned our most of the products. There is the need for opting organic farming. Over 400 products, deadly contamination, heavy metals like lead, mercury, cadmium to pesticides, fungicides above the permissible levels. यही है chemical above safer limit है. Therefore they are banning our Indian products, which is hampering Indian economy, specifically agri sector. तो आगे देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिक सिस्टम, मतलब ऑर्गेनिक सिस्टम कैसे अचीव हो सकती है देखते हैं. तो थ्रू क्रॉप मैनेजमेंट, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, rather than using high fertilizer dose, we can try crop rotation like cereal crop, perennial crop, cereal crop. Okay, the intercropping, same way, legume crop with any other cereal crop, जैसे कि wheat or rice. So it fixes nitrogen from the air. Mixed cropping, cover crop, we can therefore इधर लिखा है legume for nitrogen fixation. And also reducing the pesticide through pest and disease resistant varieties. So crop management ये कर सकते हैं हम. Then soil fertility management क्या कर सकते हैं, तो FIM यूज़ कर सकते हैं, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट, बायो फर्टिलाइजर जैसे कि राइजोबियम, एजेटोबैक्टर, एजोस्पाइरिलम, फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया. देन रिसाइकलिंग ऑफ क्रॉप रिसाइड्यूज हमने देखा, समर्थ स्कीम आपने नहीं देखा होगा तो हमारे प्लेलिस्ट में ये स्कीम अपलोड है, जाके देखिए. ऑर्गेनिक वेस्ट. ओके, देन वीड मैनेजमेंट हम क्या कर सकते हैं, मैकेनिकल वीड मैनेजमेंट कर सकते हैं रादर देन फोकसिंग ऑन अदर केमिकल्स टू कंट्रोल वीड. वी कैन यूज मल्चिंग, क्रॉप रोटेशन, अगेन बायोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू प्रेडिटर्स. सो एविडेंस ऑफ सिंथेटिक हर्बिसाइड्स. So pesticide, how can we control pest and disease? Through neem-based product, biopesticide, pheromone traps, predator and parasitoids. Use of resistant varieties, crop rotation. Crop rotation common point है, resistant varieties भी common है, and biological control through these methods. Then again, animal husbandry और integration कैसे कर सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में, यूज ऑफ डंक, यूरिन एंड ड्रॉट पावर एनिमल्स एंड इनकम डाइवर्सिफिकेशन, जो न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग कर सकते हैं इन मिक्स फार्मिंग. तो यूज ऑफ पंचगव्य, जीवामृत, बीजामृत, काउ बेस्ड प्रिपरेशन प्रोडक्ट्स, वी कैन यूज दिस एज फर्टिलाइजर्स. बायोडायनेमिक प्रिपरेशन जैसे कि काउ पैट पीट, BD 500, सेम फॉर यूज ऑफ न्यूट्रिएंट एनहांसमेंट इन द सॉइल. सो इफेक्टिव वाटर एंड इरिगेशन मेथड, इफिशिएंट यूज ऑफ वाटर यूज जैसे कि ड्रिप, स्प्रिंकलर यूज़ कर सकते हैं. अवॉइडिंग वाटर पोल्यूशन थ्रू केमिकल, जैसे कि थ्रू फर्टिगेशन. हमें केमिकल्स नहीं यूज़ करने ऑर्गेनिक फार्मिंग में, ज़ीरो. सो थ्रू बायोडाइवर्सिटी एंड एग्रोफॉरेस्ट्री, यूजिंग मल्टी स्टोरेज क्रॉपिंग, एग्रोफॉरेस्ट्री यूज अ प्रॉपर स्पेस एंड इनकम डाइवर्सिफिकेशन. ग्रोइंग hedgerow, live fencing, which act as a barrier for pest. नेक्स्ट, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जैसे कि स्टोरेज, प्रोसेसिंग विदाउट केमिकल प्रिजर्वेटिव्स, यूजिंग इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज. ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन कर सकते हैं एंड लेबलिंग कर सकते हैं. NPOP ये मेजर ऑर्गेनाइजेशन है जो सर्टिफिकेशन का देखती है. सो सर्टिफिकेशन एंड मार्केटिंग,
compliance with NPOP, National Program of Organic Production, does the certification and marketing of the product, branding and value addition of the product for better export opportunities. So organic farming is the future of export एग्री प्रोडक्ट्स. तो चलो देखते हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है. नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन NPOP 2001 launched by APEDA and Ministry of Commerce provides standard for organic production and looks into certification and accreditation. And next, परंपरागत कृषि विकास योजना launched in 2015 is the cluster based approach. Minimum 50 acres per cluster. Direct farmer support for organic input, certification and marketing. The next, नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए स्पेसिफिक है मिशन फॉर ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन. इट प्रमोट्स ऑर्गेनिक फार्मिंग इन नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स. सो सिक्किम is the best example of 100% organic state. Next, ICR developed Organic Farming and Research and Development Unit under the program of NPOF. It research on organic nutrient management and integrated farming. The next, National Mission on Sustainable Agriculture, which promotes soil health management and use of biofertilizer in integrated farming technique. देखो, integrated farming is the most useful in organic farming with use of organic products like biofertilizer, biopesticide, etc. The next, what are the other supportive measures like soil health card scheme, due to which the farmer gets the current state of the soil so he can practice accurately or manage the requirement of the nutrients rather than using excess of nutrients in the soil. The next, the state specific scheme, जैसे कि सिक्किम मैंने बताया 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, 2016 he declared himself. Then again Kerala organic farming policy the Kerala state has launched. The next, जैविक खेती पोर्टल, जहाँ पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए उनके प्रोड्यूस सेल करने का डायरेक्टली टू द कंज्यूमर. देन कृषि समृद्धि योजना लॉन्च इन महाराष्ट्र is a state level scheme focuses on sustainable agriculture development including support for organic farming. ये schemes जितनी ज़्यादा ध्यान रख सकते हो स्कीम और उसका ऑब्जेक्टिव हमें एग्जाम में लिखना है, जिससे वैल्यू एडिशन और हमारा आंसर जनरलिस्टिक नहीं लगता. ठीक है. देन वर्ल्ड वाइड कौन सी इनिशिएटिव्स है तो देखते. तो IFOM जिसने 4 प्रिंसिपल्स दे दिए थे ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसी ने ग्लोबल गोल सेट किया है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, एडवोकेसी फॉर ग्लोबल ऑर्गेनिक स्टैंडर्ड्स. ओके. देन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन supports organic farming for food security and sustainability. It focuses on food security and sustainability. The FAO published guidelines, capacity building and global database related to organic farming. Then SDG goal, we know sustainable development goal, we have to achieve these goals till 2030. Let's see the goal. The second goal is about zero hunger. That is, we can collab this with the principle of health given by IFOAM. Health और healthy living maintain करनी है with zero hunger. Then responsible consumption of and production. So the farmer must be responsible that he do not use excessive chemicals so that which impacts health of the population. Then we have to act against climate change, climate action, which is the goal 13. बेनिफिट्स देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, वही सब है, सिंपल है. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के बेनिफिट्स देखते हैं. एनवायरमेंटल बेनिफिट क्या है? इट प्रिवेंट सॉइल वाटर पोल्यूशन बाय अवॉइडिंग सिंथेटिक केमिकल. वही पॉइंट सिर्फ शब्दों के साथ खेला है. देन नेक्स्ट, एनहांसिंग सॉइल फर्टिलिटी, जो बेनिफिट है सॉइल फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, सॉइल स्ट्रक्चर अच्छा होता है थ्रू ऑर्गेनिक मैन्योर, जैसे कि काउ डंग, पोल्ट्री वेस्ट एक्सेट्रा, एंड क्रॉप रोटेशन. बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन होता है. देन वी रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन थ्रू कन्वेंशनल फार्मिंग.
देन व्हाट आर द बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट्स. इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या है, कॉस्टली केमिकल्स जो रहते हैं उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाती है. ऑर्गेनिक प्रोड्यूस फेसेस मैक्सिमम प्राइस ड्यू टू द प्योर क्वालिटी एंड मोर डिमांड इन एक्सपोर्ट. देन लोअर इनपुट्स यूज होते हैं क्योंकि हम रिसोर्स साइक्लिंग करते हैं थ्रू इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम ऑन फार्म रिसाइकलिंग. एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी बढ़ती है. डिमांड फॉर केमिकल फ्री फूड ग्लोबली इज टू हाई. देन हेल्थ बेनिफिट्स देखते हैं क्या है, सेफ है, न्यूट्रिशियस है, केमिकल फ्री फूड है. देन इट्स हायर इन विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स and reduces the risk of health linked to pesticide residues. Social benefit क्या है, livelihood security of the small and marginal farmers, improves traditional knowledge, gains momentum, community based farming पर ज़्यादा फोकस रहता है. फेयर ट्रेड रहती है क्योंकि ये गोल प्रिंसिपल नंबर 3 है IFOM का, प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस. और कंज्यूमर फार्मर ट्रस्ट बिल्ड होता है. सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट्स क्या है, सो मेंटेन लॉन्ग टर्म सॉइल प्रोडक्टिविटी. लॉन्ग टर्म सॉइल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और क्लाइमेट रिलायंस थ्रू डाइवर्सिफाइड क्रॉपिंग इंश्योर होती है. देन नेक्स्ट सपोर्ट्स SDG. सो वी हैव सीन जीरो हंगर, गुड हेल्थ, क्लाइमेट एक्शन, रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन. सो हमने देख लिया. सो यह है बेनिफिट्स टू सॉइल फर्टिलिटी इन स्पेसिफिक, क्योंकि इधर क्वेश्चन पूछा है. यह देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग हाउ डज इट हेल्प इन सस्टेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी. इधर स्पेसिफिक पूछा है तो ज़्यादा पॉइंट जनरेट करने चाहिए हमें. तो देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी में. हियर द बेनिफिट्स टू सॉइल फर्टिलिटी आर, इट इम्प्रूव्स सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, जैसे कि एडिंग अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर एंड इम्प्रूव सॉइल एग्रीगेशन एंड मेक्स सॉइल लूज पोरस ड्यू टू द हाई ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट एंड ऑल्सो वेल एरेटेड. देन नेक्स्ट, इट एनहांस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी. हाउ इट एनहांस न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी, जो ऑर्गेनिक अमेंडमेंट्स है वो एक्ट एज अ स्लो रिलीज न्यूट्रिएंट एजेंट. Nutrients like NPK and micronutrient are steadily supplied to crops. Then next, microbial activity. Microbial activity, organic matter, if organic matter is high, then microbial activity must also be high. So the beneficial microorganism like nitrogen fixing bacteria, mycorrhizal fungi, decomposers flourish and enhance nutrient cycling. So और क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी. सॉइल अच्छी रहेगी तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी रहेगी, एरिएशन अच्छा रहेगा. देन ऑर्गेनिक मैटर ऑल्सो इंक्रीज सॉइल एबिलिटी टू रिटेन मॉइस्चर, रिड्यूस वाटर स्ट्रेस इन ड्रॉट्स लाइक सिचुएशन. इट ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल इरोजन. ऑर्गेनिक मैटर पार्टिकल्स होल्ड द सॉइल विच इन टर्न रिड्यूसेस द सॉइल इरोजन एंड टॉप लॉस ऑफ द सॉइल. So it also maintains soil pH. Organic inputs buffer soil against acidification and alkalization. Maintains the pH, which is caused by the high or the low pH caused by the chemical fertilizers. While adding inputs, organic inputs, it maintains the pH of the soil. So हमने देखा soil fertility में क्या benefits है, अभी देखेंगे crop productivity में क्या benefits है. तो चलिए, sustainable yield मतलब initial yield may slightly be lower but in the long term the productivity stabilizes. ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्टार्टिंग में yield लो रहता है और in the long term process it enhances and reaches its maxima. The next, resilient crop मतलब better soil health leads to crop that are more resistant to pest, disease and environmental stress. Enhance nutritional quality of the crop, जैसे कि higher level of vitamins, antioxidants and minerals. It also reduces the input cost, saving on chemical fertilizers, pesticide and reinvestment in better crop management.
So through diversified cropping, organic farming encourage crop rotation, intercropping, and increases overall farm productivity. So हमने अभी देखा बेनिफिट्स ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, सॉइल एग्रीगेशन, कॉज सॉइल इज लूज पोरस एंड वेल एरिएटेड, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी इंक्रीज होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी इंक्रीज होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंक्रीज होती है, एंड ऑल्सो रिड्यूसेस सॉइल इरोजन एंड मेंटेन सॉइल पीएच. सो क्रॉप प्रोडक्टिविटी में क्या देखा, तो देखा सस्टेनेबल यील्ड बिकॉज द लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिविटी स्टेबिलाइजेस बट द इनिशियल यील्ड्स may be slightly lower. The next, resilient crop to resist against pest, disease and environmental stress. To enhance nutritional quality, जैसे कि higher level of vitamins, antioxidants and minerals. It also saves input cost, and through diversified farming we can achieve overall farm productivity. यहाँ तक हमने देखा हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग. इसके आगे ऑर्गेनिक फार्मिंग का क्या स्कोप है ये देखेंगे. तो इन जनरल टर्म्स वी कैन से द स्कोप ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इज टू improve soil health and long term fertility. Okay, this is the first point. Then second, we can say it reduces pollution and promotes environment sustainability. Then the third point, we can say it ensures premium market for the produce. And has high export potential. एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा है ऑर्गेनिक प्रोड्यूस के लिए. देन नेक्स्ट, द स्कोप इज हाई ड्यू टू द राइज इन डिमांड फॉर हेल्थ और द हेल्दी प्रोडक्ट्स और केमिकल फ्री प्रोड्यूस. द नेक्स्ट, द स्कोप, द मेजर स्कोप, it is due to the government support through various schemes we have seen like Pradhan Mantri Krishi Vikas Yojana and NPOP, which is the certification agency for organic farming. The next is the organic farming is suitable for Indian agroclimatic zone. Then what are the limitations? Just pause the screen and think about it. लिमिटेशन क्या हो सकते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के, चलो देखते. लिमिटेशन, स्टार्टिंग इनिशियल यील्ड लोअर रहता है विच लूजेस द मोटिवेशन ऑफ द फार्मर. नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन मैनेजिंग न्यूट्रिएंट्स ड्यू टू द लैक ऑफ नॉलेज. Next, it is too costly in the initial terms. Then we can say requires high skill and training. And we have limited options for pest and disease control. ओके, सो ये क्वेश्चन भी स्पेसिफिक है. हमें डायमेंशन देखने, सोशल डायमेंशन में क्या लिख सकते हैं हम ऑर्गेनिक फार्मिंग के. वही सब पॉइंट्स मैंने इधर कीवर्ड्स में लिखे, वही हमें एलोबरेट करने हैं. ओके, सो सोशल डायमेंशन, फर्स्ट सोशल डायमेंशन, उसमें पहला पॉइंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन. हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग से we get various nutrient minerals which impacts on our health and reduces the adverse effect. It also causes rural employment and it boosts traditional knowledge.
It empowers farmer and ensures consumer awareness against chemically produced foods. Then the economic dimension में लिख सकते हैं हम ये 5 पॉइंट्स, जैसे कि इट हैज़ प्रीमियम प्राइसिंग ड्यू टू द केमिकल लेस या फिर नो केमिकल spraying. Reduce input cost, we do resource cycling. Export opportunities due to high demand in organic free products. Then we can also do value addition, like making of pickles which are chemically free and can be exported. We also have government supports through various schemes. The dimension is environmental dimension. First, the soil fertility enhances the soil fertility through various biological methods rather than going to the synthetically used methods. It also conserves water. The next, climate resilience and resist climate change, which in turn impacts all environment, human and animals. The next, biodiversity. It conserves biodiversity, also controls the pollution. तो यही पॉइंट हमें एलोबरेट करके लिखने हैं. यहाँ पर मैंने सिर्फ कीवर्ड्स दिए हैं, क्वेश्चन की डिमांड से हमें एलोबरेट करने हैं. एंड मस्ट गिव एग्जांपल, जैसे कि गवर्नमेंट सपोर्ट. इधर गवर्नमेंट सपोर्ट लिखा है तो गवर्नमेंट की एक स्कीम लिखनी है. पोल्यूशन कंट्रोल, एक एग्जांपल देना है कैसे पोल्यूशन कंट्रोल होता है. उसके बाद सॉइल फर्टिलिटी, हाउ इट एनहांसेस सॉइल फर्टिलिटी थ्रू क्रॉप रोटेशन. ओके, I think you got it. Then the next specific question is about organic farming in different agroclimatic zones. यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 एग्जाम्पल दिए हैं. एग्जाम की क्वेश्चन की जो डिमांड रहेगी उसके हिसाब से हमें उस क्लाइमेटिक जोन का ऑर्गेनिक फार्मिंग का पैटर्न लिखना है. तो इन द रीजन ऑफ इंडो-गैंजेटिक प्लेन, द क्रॉप्स वी ग्रो लाइक राइस, wheat, sugarcane, pulses and vegetables. Therefore, there we can follow crop rotation, which we know the cereal and then legume rotation. Can also use green manuring and vermicomposting methods. These are organic farming methods because the region is high population density and the demand is large for organic vegetables and cereals. Then in western arid and semi-arid zone, the region of Rajasthan, some part of Maharashtra, Gujarat. Here the major crops are bajra, moth bean, cumin, mustard. Okay, here we can practice mulching to reduce evapotranspiration, drought resilient varieties, efficient use of water through various drip irrigation methods. So the Rajasthan is already a hub for organic spice and medicinal plants. So यहाँ तक हमारे पूरे कंसेप्ट डन हो गए. हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन का नीड है वो सेटिस्फाई होता है कि नहीं. सो जस्ट रिकॉल ऑल द पॉइंट्स. सो यहाँ स्पेसिफिक फीचर पूछा है ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड नेचुरल फार्मिंग. तो फीचर क्या है? फीचर ये है कैरेक्टरिस्टिक. केमिकल यूज़ नहीं होता, नेचुरल इनपुट यूज़ होते हैं, फार्म रिसाइकलिंग पे फोकस होता है, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन होती है, बायोलॉजिकल पेस्ट एंड डिसीज मैनेजमेंट थ्रू बायोलॉजिकल पेस्टिसाइड, फेरोमोन ट्रैप्स एंड प्रेडिटर्स. इट ऑल्सो प्रमोट्स बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन. यही सब हमें कैरेक्टरिस्टिक में लिखना है. ओके, देन नेक्स्ट द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन वी विल गेट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो. सो लीव इट फॉर नाउ. देन अगेन दे आस्क डिफाइन ऑर्गेनिक फार्मिंग. हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है. हमने जो सोशल, इकोनॉमिकल एंड एनवायरमेंटल डायमेंशन देखे ऑर्गेनिक फार्मिंग के, वही हमें देखना है. ये सब डायमेंशन अभी देखे तो यही डिस्क्राइब करके पॉइंटर्स के साथ हमें लिखना है विद एग्जांपल वेरेवर नीडेड, वेरेवर द स्कीम इज नीडेड. ओके, देन द नेक्स्ट, ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे. देन इकोनॉमिक्स, सेम वही पॉइंट फिर से लिखना है. और एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से
2, 3 नहीं तो 4 एग्रो क्लाइमेटिक जोन डिस्क्राइब कर सकते हैं। द नेक्स्ट, रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग का रोल क्या है, वही हमने देखा। जो बेनिफिट्स है, वी कैन राइट देम एज रोल लाइक इट प्रिवेंट्स सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन, सॉइल फर्टिलिटी मेंटेन करता है, ग्रीन हाउस गैस रिड्यूस करता है, इकोनॉमिक बेनिफिट है ड्यू टू इट रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स। यही सब हेल्थ बेनिफिट क्या है, क्या रोल प्ले करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्थ में, सोशल बेनिफिट क्या है, सस्टेनेबिलिटी बेनिफिट क्या है, यही सब बेनिफिट या रोल हमें लिखना है क्वेश्चन में। सो वी हैव टू मैनेज द पॉइंटर्स एज पर द मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन। सो यहाँ पे 4th क्वेश्चन हो गया। देन नेक्स्ट, व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग, पता है हमें, डेफिनेशन लिखनी है ऑर्गेनिक फार्मिंग की। हाउ डज इट हेल्प इन सस्टेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी एंड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, हमने देखा था वो क्वेश्चन स्पेसिफिक था सॉइल फर्टिलिटी और क्रॉप प्रोडक्टिविटी में। देन नेक्स्ट, डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस बताना है, रोल बताना है, बेनिफिट बताना है। सभी पॉइंट्स मिक्सअप करके हम यहाँ लिख सकते हैं, हमें पता है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है। विथ रिस्पेक्ट टू न्यूट्रिशनल वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन में क्या कर सकते हैं हम, वो लिखना है। देन नेक्स्ट, what is organic farming, should country like India go for the organic farming, हमारा जो कंसेप्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग का, जो इंडिया के लिए सूट हो सकता है कि नहीं, वो बताना है। देन वी हैव टू डिस्कस द स्कोप एंड लिमिटेशन विच वी हैव बीन सीन इन द PDF। सो हियर फॉर टुडे वी हैव कवर्ड ऑल दिस concepts of organic farming. So there is the end for this topic, and we have approached all the questions and the answers for it. So enough for today. We will see the part 2 in next video. So do subscribe and like our channel. Thank you.